Good morning, everyone. I'm Abhishek Chaudhary, and welcome to the Times of India's monthly debate. What we do here is basically every month on the first Wednesday, we discuss a topic that is kind of a burning issue. I mean, more specifically for the city, but even for the state or the nation in general. And this time, without doubt, it's the nylon manja menace, which everybody in different capacities are facing right now, be it as a citizen, be it as a activist, be it as a doctor. You all are facing issues related to the nylon manja menace, and that is what we will be discussing here today. First, I'll just introduce you to my colleagues, and then we'll go over the format of the debate quickly. So Rahul Soman is here, Hello, Sudhanshu hi, hello. there, and Manka Bell. So the three of us from Times of India will be there, and as we said that we are also webcasting live on Facebook, that your friends can and relatives can watch right now, or even later on. The video will anyway be saved, so you can also refer to it on the Times of India's social media platforms as well. So the format of the debate is, first I'll go through the language, so English and Hindi. Marathi, I mean, obviously we welcome it. The only reason is that since you are webcasting, so we have an audience which is spread outside of Maharashtra as well. So they may not be able to understand Marathi. So Hindi, English preferred. That would be the preferred mode of communication. Please feel free to express yourself in any of these two languages. The second part is that we will start off with a common question. Now, this common question serves two purposes for us. The first, obviously, is we would like you to introduce yourself and then answer that particular common question. The introduction, I mean, we obviously know you, but since there are many people who are watching, so they may not be familiar with you. So we just want you to introduce yourself and kind of give a very brief introduction. And this common question that I ask, please just answer it very briefly, probably just 2 or 3 lines, and then we'll discuss it later. After the introduction round is over, we'll discuss it in detail later. So the common question that we are asking is, who's responsible for the nylon manja menace? Is it people who buy, or is it people who sell? So who's responsible according to you? So what I'll do is that I will go to people as I see them on my screen, so that it doesn't get jumbled up. तो सबसे पहले अशोक सर हैं, उसके बाद में डॉक्टर विल्किंसन है. सो अशोक सर, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए और बहुत ही शॉर्ट में ये वाला आंसर पहले दे दीजिएगा. धन्यवाद अभिषेक जी. मैं सभी को नमस्कार करता हूँ. मैं अशोक संघवी, प्रेसिडेंट ऑफ द नागपुर जनरल मर्चेंट एसोसिएशन, जिसके अंदर में करीब 300 लोगों का मेंबर संस्था है, और अभी सभी लोग हम अपना जनरल व्यापार करते हैं. और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, मैं उसका जवाब कुछ 2 लाइन में पहले दे सकूंगा. बिल्कुल सर. आपने ये कहा कि क्या नायलॉन मंजे को बेचने वाले जवाबदार है या खरीदने वाले, लेकिन मैं आपसे थोड़ा डिफर्स करूंगा. एक्चुअल बेचने वाले और यूज करने वाले, इसके पहले एक कड़ी और आती है जो कि है बनाने वाले. और मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टली ये नायलॉन बनाने वालों के ऊपर में एक्शन होना चाहिए. और गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी है पता लगाना कि मैन्युफैक्चरर्स कौन है. और जहां तक मुझे नॉलेज में है, पंजाब और लुधियाना में ये नायलॉन मंजा बनाया जाता है. तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर में एक्शन लिया जाना चाहिए बनाने वालों को. बिल्कुल, थैंक यू. और सर, एक्चुअली हमने जो मैन्युफैक्चरर्स आपने कहा ना, तो हमने उन्हें सेलर कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज टेक्निकली दे आर आल्सो सेलर्स, दे आर सेलिंग. तो इसीलिए इन्हें सेलर और बायर करके हमने इस तरह से उसको कैटेगराइज किया है. बट वेरी वैलिड पॉइंट. डॉक्टर विल्किंसन, आई विल गो टू यू, एंड देन उसके बाद अभिजीत जी और अजिंक्य जी. Good morning, everybody. It's a pleasure to be part of this debate. I am Dr. Wilkinson. I am a general surgeon and have been practicing for many years. I have the misfortune of having treated a lot of patients with this nylon manja injury. As far as the question of the buyer and the seller, which comes first, the chicken or the egg? That is the question. Now, I think both are equally responsible. Unless there is a demand for the nylon manja, it won't be manufactured, it won't be sold. And maybe also, I would say then the third party should be there is the regulating authorities. They should be a little more strict. That is the third. So to enforce that neither the buyer wants to buy and the seller wants to sell. This is my take on this. Right.
Yes, definitely, and we'll discuss this in detail. So Abhijit ji and then Ajinkya ji. Good morning to everyone in the panelists, and thank you so much, Abhishek sir. Myself, Abhijit Jha. By profession, I am civil engineer and part of Nagpur Citizen Forum and president of Sankalp Nayi Soch Nayi Umeed. As far as this topic is concerned of the debate, I firmly believe that whenever the festivity of kites comes, then only as a discussion we discuss that what should be the issues and the options which should be sorted out by the administration to curb all these measures. But as far as this nylon manja is concerned, manufacturing should be completely stopped, and that main perspective, administration failure is responsible for all these happenings in entire India. Thank you. Ajinkya ji और फिर Raturi ji. Hello, good morning, everyone. My name is Ajinkya Bhatkar. I'm Honorary Wildlife Warden Nagpur, and I'm closely working with Forest Department from last few years and various activities. And we are organizing this manja removal campaigns on voluntary basis with Forest Department. In last few years, we observed that so many birds injured due to this manja removal. And the question is, who is responsible? So both buyer and seller is responsible, but there is a big responsibility of administration to aware people about it. I think as an administration, as a NGOs, as an individual, we are not able to aware people about this accidents and these injuries. And media also play a very important role to aware people. I think media should take this up and at big level. So we'll discuss later, but it's my Yes, opinion. thank you. Raturi ji and then Dr. Sunil Bavaskar. Raturi ji, आप म्यूट पर है सर. म्यूट कर दो. सुधांशु एक बार देख सकते हैं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद रतुरी जी को अनम्यूट करने में. सर मैं तो आ रही, मेरी आवाज आ रही? अब आ रही है, प्लीज. हाँ, आ रही आवाज. सभी पैनलिस्टों को मैं नमस्कार कहना चाहूंगा. आज का जो सब्जेक्ट लिया आप टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि ये एक सिर्फ नायलॉन मंजा तक ही सीमित नहीं है. इसको हम लोगों ने मौत का फंदा नाम रखा है. नायलॉन मंजा मौत का फंदा, क्योंकि ये एक ऐसी कुप्रथा हो गई है और अपनी खुशियों के लिए हम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं. मुझे बताइए, जो ना मंजा इस्तेमाल करता ना पतंग उड़ाता है, जिसके बच्चे ना कभी पतंगों के पीछे दौड़े, उनकी मौतें हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन हाथ खड़ा करती है. हम लोग सालों से, मेरा संगठन, मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अरविंद कुमार रतूड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता, किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन न्यूज फोर्स का संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्र निर्माण की और 2 कदम, नारी शक्ति एक सम्मान, पशु क्रूरता के खिलाफ जंग, उसी तरह राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता. मगर मुझे दुख होता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के कंधे पे जिम्मेदारी डालता है. शासन कहता है उसकी जिम्मेदारी, वो विभाग कहता है इसकी जिम्मेदारी, से कहते आ रहे हैं. वन विभाग, महानगर पालिका, पुलिस विभाग, कलेक्टर की टीम, एनजीओ सारे मिलकर अगर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस पे रोकथाम लगाएंगे. हम कहते हैं निर्मित बंद करो. शायद निर्मित बंद करने में हमें काफी समय लगेगा. हमें शुरुआत करनी है जो हम लोग करते आ रहे लगातार 17-18 सालों से, जन जागृत. ये वाले पार्ट को थोड़ा सा संक्षिप्त में ले लेंगे. तो आपके हिसाब से बायर की गलती है या सेलर की गलती है? रिस्पॉन्सिबल कौन है आपके हिसाब से? मेरी नजर में सबसे बड़ी गलती मेरी नजर में इसमें खरीदने वाले की है. वो पालक लोग, वो अभिभावक लोग, वो युवा लोग जो अपनी चंद पल की खुशी के लिए लोगों की मौत का सौदा करते हैं, दुकानों पे जाके नायलॉन मंजा मांगते हैं. क्योंकि दुकानदार स्वयं हमें कहते हैं कि सर हम तो बेचना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी दुकानें बंद हो रही हैं. खरीदने वाला कहता है हमें नायलॉन मंजा दो, नहीं है तुम्हारे पास तो हमें नहीं लेना है. तो जब तक खरीदना बंद नहीं होगा, यकीन मानिए तब तक बिकना बंद नहीं होगा. जी, थैंक यू. डॉक्टर सुनील बावस्कर और उसके बाद में कुंदन हाथे सर. जी. Hello everyone, myself Dr. Sunil Bavaskar. I'm audible? Yes sir. Okay, I'm working in Maharaj Bagh Zoo, Nagpur since last more than 20 years. And as far as regarding this nylon manja is concerned, I would say one thing that not only seller, not only buyer, or not only manufacturer is responsible.
all the humans who are involved in this chain are responsible for this purpose. And anyone who wants to come ahead and break this chain, it will be helped. So we have to try our level best. Whoever is doing, government is doing, media is doing, all are working together, and we are getting good results also. Thank you. Thank you. Last, Kundan Hate sir. हेलो अभिजीत. Yeah, Kundan Hate sir, please go ahead. तो बस एक आपका एक पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन फॉर दी ऑडियंस वाचिंग, और एक शॉर्ट में बस हम लोग एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हु इज रिस्पांसिबल फॉर द मंजा मेनेस, बायर या सेलर? चढ़ना था आपने. ओके, यहाँ से क्या चलो अभी मैं. हेलो, भाई घूमते रहो, लेकिन इधर आवाज आ रही है अभिजीत? जी बिल्कुल, कुंदन सर बोलिए जी. हेलो, मैं कुंदन हाते, मैं एक्स स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ पे हूँ. बायर और सेलर ये जो चल रहा है, ये तो बराबर है कि सप्लाई नहीं होगा, लेकिन जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का पूरा अधिकार सरकार का है. और उन्होंने अगर सोचा कि ये कंप्लीट बैन होगा तो होगा. अभी कैसा है, हमारे यानी मराठी में एक कहावत है की तहान म्हणजे आपण तहान लागली म्हणजे विहीर खोदतो, तर तसंच आहे. आणि दुसरी गोष्ट असं आहे की इथे आपल्याला म्हणजे जे प्रशासन आहे ते जशी संक्रांत येते त्याच्यात 1 महिना 2 महिन्या आधी त्यांना कळतं की बा नाही, आता आपल्याला मांजा पकडणं चालू करणं लागेल, दुकानातनं सीज करणं चालू करावं लागेल. तर हे जे आहे सगळं हे वर्षभर जर चाललं तर मार्केटमध्ये मांजा येणार नाही. आणि मांजा येणार नाही म्हणजे लोक घेणार नाही. कारण आता इतके बर्ड्स, म्हणजे माणसांचं तर आहेच, पण इतके बर्ड्स एन्ज्युअर्ड त्यात होऊन राहिलेले आहे, जे मी रोज बघतोय. आणि इतके डॅमेज आहे की सर्जरी केल्यानंतरही ते उडू शकत नाही. जिवंत राहू शकतात पण उडू शकत नाही. तर खूप मोठा लॉस इथे होतोय. आणि त्या याला फक्त आणि फक्त गव्हर्नमेंट एजन्सीज फक्त कंट्रोल करू शकते. कारण लोकांना तो विकायचा आहे, लोकांना पैसे कमवायचे आहे. पण गव्हर्नमेंटनी जर यावर कंप्लीट बॅन आणला, मॅन्युफॅक्चरिंगवर बॅन आणला, तर हे सगळं शक्य होईल. जी बिल्कुल. बस मैं एक क्लैरिटी के लिए, जो लोग जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं मराठी से फ्लुएंट ये ना करते हो, समझ ना पाते हो, मैं ब्रीफ में समझाना चाहूंगा. कुंदन जी ने जो बात बेसिकली कही है कि शुरुआत से ही अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसके ऊपर स्ट्रिक्ट निगरानी रखे, मैन्युफैक्चरर्स पे कंट्रोल रखे, तो ये जो नौबत फिलहाल हम देख रहे हैं जहाँ पे बायर को इजीली मिल जा रहा है मंजा, और मैन्युफैक्चरर और जो रिटेल सेलर है वो भी बेच रहा है, ये पूरे प्रोसेस पे कंट्रोल लाया जा सकता है. So that is what Kundan ji has elaborated. Now we'll get into the details of the debate. इसमें मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर विल्किंसन से. मैं एक जो हम नायलॉन मंजा ये सुना बहुत लोग ने है, मगर हो सकता है कि एक ऐसा जनरेशन भी होगा जिसने कभी नायलॉन मंजा यूज नहीं किया. सो मुझे ये समझना है डॉक्टर विल्किंसन, बिकॉज आपने ऐसे कई केसेस को ट्रीट किए हैं और आपने सीरियस, अनफॉर्चुनेटली सीरियस केसेस भी देखे हैं इसके अंदर में. सो थोड़ा बताइए कि सुनने में ऐसा लगता है तो थ्रेड है, इट इज नॉट अ मेटल, इट इज नॉट अ बारीक मेटल तार जिससे. सो व्हाई इज दिस थ्रेड सो डेंजरस, इनफैक्ट लीथल ऑल्सो? प्लीज टेल द ऑडियंस अबाउट इट. Hello, can you hear me? Yes sir, we can. To begin with, can I? This thing has gone off my headphone. Yeah, please, because you are audible to us. Yeah. So what I was saying is, to begin with, in the ancient or rather in the world wars, they used to have what is called the tripwire or something like that. When somebody is passing by on a motorcycle or a vehicle, you put a wire across the road and at the level of the person's neck, so that as he passes by, he gets his neck gets cut and he gets thrown off the vehicle. Now these manjas, now previously what used to happen is the manja used to be of cotton, which had a breaking, had a lower breaking point.
Now what has happened is it's become nylon. Now nylon has got a much higher tensile strength than cotton. Plus, as the naturalists have said, that it is not biodegradable. So therefore, if it is stuck onto a tree, it lasts forever. Whereas the cotton manja deteriorates with time. So therefore, the birds, etc., get. Now the second thing all is that this manja, when it falls between buildings, it gets entangled between buildings, etc. An unsuspecting passerby comes through and it gets caught under his neck or any other part of his body. It will not break and it will cause a serious, deep injury or wound. Even pull him off his vehicle. So that is one. And I have last year I saw a case person who had his throat completely cut, even the voice, the trachea, etc., what is called the breathing passage, that was also cut. Luckily enough, I could save him. The only reason was because I was there in the hospital. Otherwise, if I was somewhere else, then he would have not survived. And these are extremely serious injuries. But for some reason, the people still, it is a matter of pride that you can cut somebody else's kite. And if you're using a cotton manja and somebody else is using a nylon manja, then you stand more chance. There is also betting on who can cut whose kite. I think there's a lot of money involved in the betting. So then again, there's a compulsion to use a nylon manja. So it has to be a basic education with people. People should become more. I mean, now the lay person may or may not see these victims of the cut injury or manja, but we see it. Right. Horrible cut injury. Right. I think maybe more sort of now, though the photographs are fairly graphic, but maybe you should have some graphic photographs. So this is what happens when you what you call use a nylon manja. Like for example, in smoking, anti-smoking Cigarette campaign, packets. Yeah. it has a ghastly picture of a oral cancer or a lung cancer. This happens when you smoke. I suppose maybe in the patang shops where they sell manja, there should be a photograph saying Yes, absolutely. And I think people need to realize that though we use the word nylon manja or a thread, it is actually almost like a metal wire pretty much, Yes. because that's the level of damage it is doing. हम लोग थोड़ा सा इस पे और ये चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं सांघवी सर से भी. सांघवी सर, you had said that manufacturers के ऊपर रोक टोक लगनी चाहिए, मगर वो एक बात थी जैसे डॉक्टर विल्किंसन ने भी कहा था कि विच केम फर्स्ट, चिकन और एग. यानी जब तक सप्लाई है तब तक डिमांड रहेगा, या जब तक डिमांड है तब तक सप्लाई रहेगा. आई मीन इकोनॉमिक्स जनरली बोलता है कि जिस चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई रहेगी. सो कैन वी एक्चुअली ब्लेम मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स जो सिटी में बेचते हैं, एंड हाउ डू यू कीप अ चेक? एक सेल्फ रेगुलेशन भी होता है क्या सर? बिकॉज यू आर हेडिंग द एसोसिएशन, मर्चेंट एसोसिएशन, तो आप लोग सेल्फ रेगुलेशन करते हैं? किस तरह से आप लोग इस चीज पे चेक लाते हैं सर? सांघवी सर, कैन यू हियर मी? हाँ, अभी से जैसे मैंने जी डॉक्टर साहब की बात सुनी, तो मांजा तो हकीकत में बहुत डेंजरस होता है, और एक्चुअली इसको जो बनाया जाता है, जो मुझे जानकारी है, तो उसके अंदर में पॉलीमर का मटेरियल यूज करके उसको कोटिंग किया जाता है, और पॉलीमर का जब कोटिंग हो जाता है उसके बाद में उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नॉर्मल तरीके से उसको यदि तोड़ने भी जाते हैं तो टूटता नहीं है. रहा सवाल कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जैसा मैंने भी अपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि मैन्युफैक्चरर्स ही मेन इसके लिए जवाबदार है, और उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी मैंने आज तक नहीं सुनी है. जबकि आप देखते हैं कि कई चीजें ऐसी होती है जिसको यदि रोकना है तो वो इच्छा शक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है, और यदि हमारी सरकार की हकीकत में इसके लिए सीरियस है तो उसके लिए पहले फर्स्ट पॉइंट पे ही यदि इसको रोक दिया गया तो मुझे नहीं लगता कि ये परेशानी आगे कुछ बढ़ सकती है. और आज हमारे यहाँ कई चीजें ऐसी है इंडिया में जो बैन है, ड्रग्स के ऊपर में बैन है, तो ड्रग्स के लिए बहुत बड़े स्ट्रिक्ट कानून बने हुए हैं. लेकिन अभी ये हो रहा है कि मांझे की जो सप्लाई चेन है, होलसेलर है या रिटेलर्स है, उसके ऊपर में पेनाल्टी के नाम पे 1000-2000 रुपए का फाइन होता है, या एनडीएस वाले या जो कॉर्पोरेशन वाले लोकल अथॉरिटीज है वो लोग रेड करते हैं, और रेड करने के बाद में छोटा मोटा फाइन करके या थोड़ा सा माल सीज कर लेते हैं, दैट्स सफिशिएंट. इससे कुछ नहीं होगा.
हमें इसके लिए गवर्नमेंट को ही एक्शन में आना होगा। सबसे पहला पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर में जाता है, और इसकी जवाबदारी तो मैं एकदम स्ट्रिक्ट और बहुत क्लियर वर्ड में अपने कहूंगा कि इसकी सारी जवाबदारी जो है वो गवर्नमेंट की है। यदि गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति है तो वो इसको फर्स्ट पॉइंट पे रोक सकती है, और इसके लिए पूरी सेंट्रल लेवल से बहुत कड़े कानून कायदे बनाने की आवश्यकता है। जो भी मैन्युफैक्चरर्स है उसको आप बाकायदा बैन लगा सकते हैं, उसकी फैक्ट्री पे सील कर सकते हैं और उसके लाइसेंस वगैरह सीज कर सकते हैं। इस तरीके का कोई ये अमेंडमेंट यदि गवर्नमेंट लेके आती है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। सेकंड थिंग, एक मीडिया की बात अभी अपने एक कलीग ने कही कि मीडिया का भी इसके अंदर में रोल है, तो डेफिनेटली अवेयरनेस वाली जो बात है, तो आज मीडिया अपने भारत देश में कहा जाता है कि बहुत बड़ा रोल है मीडिया का आज। और मीडिया यदि चाहती है कुछ चीज के लिए और अवेयरनेस यदि लाना चाहती है तो मीडिया से लोग बहुत नजीक से जुड़े हुए हैं और लोग मीडिया की बात मानते हैं। आप पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि मीडिया यदि कोई चीज को किसी व्यक्ति को हाईलाइट करता है तो लोगों की सोच उसके तरफ चली जाती है। तो वैसा मीडिया एनजीओ वगैरह को लेके और अवेयरनेस का भी यदि प्रोग्राम डेवलप करती है तो स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, तो एक नीचे के लेवल पे जो हम चाहते हैं कि उसको रोका जाए, तो उसके लिए मीडिया और साथ में जो भी एनजीओ वगैरह हैं उनका यदि यूज करते हैं तो नीचे के लेवल पे ये चीज सॉर्ट आउट की जा सकती है। लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे एक मेंबर ने कहा था कि हम जब हमको प्यास लगती है तब हम कुआं खोदने जाते हैं, तो डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। सिर्फ संक्रांत आती है उसके एक महीना पहले हमारे जो लोकल अथॉरिटीज है वो लोग सर्च आउट करते हैं, रेड करते हैं और माल सीज करते हैं। ये माल साल भर बिकता है, साल भर लोग लेके आते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, कुछ बैन वाली जब बात आती है तो वो प्रोडक्ट जो है वो 1 रुपए का प्रोडक्ट 10 रुपए बिकने लगता है। तो एक व्यापारी है, देखिए व्यापारी को कहीं ना कहीं से 2 पैसे कमाने का लालच रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि व्यापारी सही है, व्यापारी भी गलत है, उसका भी इसके अंदर में रोल कॉल है, उसने भी अपनी जवाबदारी समझना चाहिए और उसने इस चीजों को रोकने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन जैसे स्टॉक की बात करते हैं, ये साल भर चलते रहता है, तो इसके लिए एक्शन भी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है, लोकल अथॉरिटी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से साल भर यदि इस पे एक्शन यदि होती है तो वो एक माध्यम, वो जरिया भी हो सकता है इसको रोकने का। थैंक यू। जी बिल्कुल। और इसके पहले कि मैं डॉक्टर पावस्कर और अजिंक्य जी के पास आऊं, थोड़ा सा हमें क्योंकि एक एनिमल और वाइल्ड लाइफ पर्सपेक्टिव से भी इसको समझना है, आई वांट टू गो टू अभिजीत जी और रतुड़ी जी, बिकॉज देखिए आप लोग एज अ सिटीजन एक्टिविस्ट आप लोग ये चीज को हाईलाइट करते हैं। हो सकता है आपके पास भी इंफॉर्मेशन आती होगी कि ये फलाना फलाना दुकान में नायलॉन मंजा बिक रहा है, इधर मिल रहा है। तो मैं शुरुआत अभिजीत जी आपसे करता हूँ। तो जब आप लोग अथॉरिटीज के पास जाते हैं, बिकॉज यू टेक्निकली यू कैन टेक एक्शन, सो यू प्रॉब्ली गो टू द अथॉरिटीज, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है और उसके बाद में एक्शन का फॉलो अप होता है कि नहीं होता है, या वापस अगले साल उसी दुकान में फिर से बिकना शुरू हो रहा है? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? सर ओवरऑल ये सारे विषय के संदर्भ में 2 चीजों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी नीति क्या है और आपकी नीयत क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन जब भी ये त्योहार आता है तो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े जन जागरूकता करते हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ डिजाइन बनाने से अवेयरनेस नहीं होगा। ग्राउंड की रियलिटी और जो नेक्सस है उसको अगर हमें एक्सपोज करना है और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिश करना है, तो जो बहुत ही बड़े पैमाने पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास खुफिया विभाग रहता है, उनकी बहुत सारी यंत्रणाएं रहती है, उन्हें हमें सुसज्ज करना होगा, उनकी भागीदारी बढ़ानी होगी। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम कुछ लोगों को आरोपी बनाते हैं और थोड़ी बहुत कार्रवाई करते हैं, दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। लेकिन जिस परिवार के बच्चे की जान जाती है, अभी रिसेंट एग्जांपल वेद साहू की इस नायलॉन मंजे से जान चली गई, उस परिवार का दुख कोई नहीं बता सकता। आप कितना भी कंपेंसेशन दे दो, लेकिन जिसकी जान चली गई उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इस प्रकार की नायलॉन मंजे अवैध रूप से बिक्री होती है। और मैं बहुत ही गंभीरता से बोलना चाहूंगा, प्रशासन को बहुत बड़े पैमाने पर ज्ञात होता है, लेकिन उनके लेट लतीफी या असंवेदनशीलता के कारण खुले तौर पर उन्हें पकड़ा नहीं जाता, या फिर कहीं ना कहीं साठगांठ रहता है प्रशासन का उनके साथ में, व्यापारियों के साथ में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बेच रहा है, धड़ल्ले से नहीं बेच सकता, उसके मन में खौफ होना चाहिए, प्रशासन का, पुलिस का खौफ होना चाहिए, आभास है कि हाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। क्योंकि सरकार के पास में जब तक पॉलिसी नहीं रहेगी तब तक उनके पास में डर नहीं रहेगा। आप बड़े बड़े डिस्क्लेमर लिखते हैं सिगरेट के पैकेट पे कि इससे कर्क रोग हो सकता है, जी क्या लोगों ने छोड़ दिया?
सरकार की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं चलेगी। आप जब तक मिलिट्री गाइडलाइंस नहीं बनाएंगे कि इससे क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, कितने बच्चों की जान जा रही है, पशु पक्षी के संदर्भ में आज भी एनएमसी की पहल चल रही है कि हमें झाड़ों से मांझे निकालने हैं, क्या हमें उसमें सक्सेस रेशियो मिला है? आपके पास मैन पावर नहीं है, ना आपकी प्रायोरिटी है, सिर्फ और सिर्फ नीतियां पेपर पर बनती है, लेकिन एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट होने में बहुत समय लग जाता है। मेरा जी हाँ, ये पॉइंट अच्छा वाला, इसमें मैं ये कहना है कि बहुत हाँ। सारे लोग के पास में इस प्रकार की जानकारी रहती है, वो साझा भी करते हैं। हमें भी बहुत जानकारी मिली कि जड़ीपटका से लेके मोमिनपुरा में बहुत सारे जगह नायलॉन मांझा का अवैध बिक्री हो रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ पहल करके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग इस प्रकार की इनिशिएटिव लेकर कि हाँ ये रुकना चाहिए, लेकिन प्रशासन सहकार्य नहीं करता है, प्रशासन कहीं ना कहीं दुर्लक्ष्य करता है। और जो लोग एक इनिशिएटिव सोशल नागरिक की हैसियत से इनिशिएटिव पे लेता है, उसे इस प्रकार से टाल मटोल जवाब दिया जाता है कि वो खुद परेशान हो जाता है कि हमने लोगों के इस सहायता में भागीदार बनना के लिए बराबर। रतुड़ी जी, आपको भी, क्या आप अभिजीत जी के बात से सहमत है? आपको क्या ऐसा लगता है कि प्रशासन इसमें बहुत एक्टिव नहीं है टू कंट्रोल द मेनेस? सुधांशु, आई थिंक वो म्यूट पर हैं रतुड़ी जी। म्यूट हटाए अरविंद कुमार। अरविंद जी, मैं इनके हाँ जी सर। अभिषेक जी की बातों से मैं सहमत हूं। मेरी आवाज आ रही? हेलो, बिल्कुल आ रही है सर, बोलते रहिए जी। हाँ, अभिषेक जी की बातों से मैं सहमत हूं। 90% बातें इनकी सही हैं। होता कैसा है कि जब बारिश आती है तब हम छतरी खरीदने जाते हैं, हम पहले पूर्व अनुमान नहीं लगाते कभी। ये चीजें ऐसी शासन प्रशासन में जो पूर्व में कह चुका अपने बयान में कि एक दूसरे के ऊपर में लापरवाही पूर्वक काम करते हैं, वो इसके ऊपर फेंकता है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ये महत्वपूर्ण भाग रह गया था मेरा कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कोई भी कार्रवाई अभी तक पंचनामा नहीं हुआ। उन्होंने कहीं भी, आप माल जब्ती के समय पे, सील के समय आप आए नहीं। होता क्या, सुबह 4 चक्री पकड़ी जाती है, शाम को ले दे के मामला रफा दफा किया जाता है। मुझे बताइए, जब 18 साल की हमारी लड़ाई रही है, अकेला व्यक्ति हो, अकेले कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर हमला हुआ था नागपुर के अंदर में, और हमला भी ऐसा हुआ था घर तक हथियार लेके गाड़ी बंद गुंडे आए थे। 164 दुकानें हमने संक्रांत के दिन तुड़वाई थी जब ये कोर्ट से स्टे लाए थे कि हमें उस प्रकार का सपोर्ट समर्थन नहीं मिलता है। हम शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के अध्यक्षों को लिख चुका हूं। उनके सिर्फ पत्र मुझे आते हैं कि हम शून्यकाल में, प्रश्नकाल में इस सब्जेक्ट को उठाएंगे, हम लोग इसके ऊपर में कोई ना कोई कायदा बनाएंगे। मुझे बताइए, जब इसको अदालत से पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है, तो क्या आप जो इस्तेमाल कर रहा, बेच रहा, खरीद रहा, उड़ा रहा है जिससे पतंग, आपको पकड़ा जा रहा, क्यों नहीं आप उसके ऊपर में सदोष मनुष्यवध लगाते हैं? क्यों नहीं आप उसमें 307 का गुना फाइल करते हैं? क्यों नहीं आप उसके ऊपर में कोर्ट अवहेलना का, माननीय अदालत की अपमान का उस पर केस दर्ज करते हैं? सिर्फ खाना पूर्ति क्यों करते हैं आप? जब तक आप सख्त कानून, सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें होती रहेंगी, बिकती भी रहेंगी, बनती भी रहेंगी, उड़ती भी रहेंगी, जिंदगी लोगों की जाती रहेंगी। सस्ती है जिंदगी। और मुझे दुख हो रहा है, पहली बार मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि एक मांग मेरी जो मानी गई, वो मांग थी कि मरने वाले को मुआवजा दिया जाए। लगातार 18 साल से, आप कोई भी हमारा लेटर उठा के देखिए, 18 साल से यही विषय था कि भैया जब विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, सरकारी आपदाएं होती है, नैसर्गिक आपदा आती है, तो आप पैसा देते हैं। इसमें जो मौत हो रही है, तो देखिए इंसान की कीमत 1.5 लाख रुपए लगाई गई है, जो बड़ा दुर्भाग्य है। मेरठ और बरेली के अंदर ये माल चीन ताइवान के बाद, इसे चीनी डोर बोला जाता है, ये चीनी डोर के नाम से फेमस है। इसके अंदर में केमिकल्स रहता है, कहीं कहीं इसमें विद्युत प्रभाव होता है, करंट जो होता है, जब बच्चा खींचने जाता तो उसमें करंट से भी मौतें हुई है। लोगों के पास आंकड़े नहीं, लेकिन जितने आंकड़े 2004 से जमा किए हैं, लगभग 419 मौतें हुई हैं इसमें। कुछ मौतें मीडिया में आई, कुछ मौतें मीडिया के अंदर में नहीं आई। मंजा लटक गया गाड़ी के ऊपर में, दुर्घटना हो गई तो उसको एक्सीडेंट नाम दिया गया। तो ऐसी मौतें, अनदेखी मौतें, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 400, 425 हुई है। 60,000 चिड़ियाएं, पंछियां मरी हैं और 42,000 इसमें इंजुरीज हुई है।
इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, कुछ ये लोगों ये की इंजरी ये इतनी आपने actually खतरनाक बहुत हुई। अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि कैसा है, इसमें दो एस्पेक्ट्स है। हम लोग लिविंग बींग्स की बात करें तो उसमें ह्यूमंस भी आ गए, उसके अंदर बर्ड्स जी और एनिमल्स भी आ गए। इसी पे मैं अजिंक्य जी और डॉक्टर भावस्कर के पास पे आऊंगा। तो अजिंक्य जी, आई स्टार्ट विथ यू फर्स्ट, बिकॉज एक जो इकोसिस्टम होता है किसी भी एनवायरनमेंट का, तो उसके अंदर बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ये सबका सेफ रहना, सिक्योर रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसी कोई फॉरेन एलिमेंट आ जाती है, जैसे नायलॉन मंजा टाइप, जो इस चीज को डिस्टर्ब करता है, तो अब मैं थोड़ा आपसे समझना चाह रहा हूँ, मे बी आई एम द डेविल्स एडवोकेट हियर, बट कि इज इट बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बिकॉज कई और चीजों के कारण भी जैसे बर्ड डेथ हम लोग देखते हैं। तो आई वांट अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम यू कि क्या ये नंबर्स सही में बहुत ज्यादा हाई आ रहे हैं एज फार एज बर्ड डेथ्स आर कंसर्न? थोड़ा सा आप इस पे हमको थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। ओके, सो एक्चुअली आपने सही कहा कि जो हैबिटेट होता है किसी भी बर्ड का, एनिमल का, वो हैबिटेट, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, नागपुर में हमारा अंबाझरी है जो एक वेटलैंड इकोसिस्टम है, अच्छा ग्रासलैंड है। वहां पर हमें वेटलैंड बर्ड्स भी देखने को मिलती है और वहां पे हमें ग्रासलैंड बर्ड्स भी देखने को मिलती है। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि 750 वी हैव 750 हेक्टर्स का एरिया जो सिटी के इतने करीब है। देन वी हैव गोरेवाड़ा फॉरेस्ट ऑल्सो, हाँ, वी हैव सेमिनरी हिल्स ऑल्सो। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स है। आप सेमिनरी हिल्स पर जाएंगे आपको अलग बर्ड्स दिखेंगे, आप अंबाझरी में ग्रासलैंड बैकवाटर के साइड में जाएंगे आपको अलग बर्ड्स दिखेंगे, और आप अगर तालाब के साइड में आएंगे तो आपको अलग वेटलैंड बर्ड्स दिखेंगे, जिसमें कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी है। ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द बर्ड्स और अदर वाइल्ड लाइफ। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मांझा। सो बर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। ऑलरेडी एक हाई टेंशन वायर अंबाझरी के अंदर से जा चुकी है। फायर के इशू, ऑलरेडी फायर का इशू वहां पे हो चुके हैं, मैनमेड फायर के इश्यूज वहां पे हो चुके हैं। देन अंबाझरी में आग लग चुकी है। ऊपर से आप सोचिए मांझा, हमने अभी 2 से 3 दिन पहले इतना मांझा निकाला है और उसको जलाया है। अगर आप उसके फोटोग्राफ्स देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना मांझा उसमें है, और नायलॉन मांझा है। अगर नायलॉन मांझा है तो वो कहाँ से आया? और हमने एक दिन में इतना मांझा वहां से निकाला है। सोचिए रोज वहां पर कितना मांझा पहुंच रहा है, और वहां पे अंदर जंगल में कोई पतंग नहीं उड़ा रहा है, लेकिन जो दूर से पतंग उड़ के आ रही है वो वहां पे है। देन जैसे कुंदन जी ने कहा कि बहुत सारे बर्ड्स इंजुरी की रिपोर्ट हो रही है, और ऐसी सर्जरीज है कि वो सर्जरी तो हो रही है बट वो उड़ नहीं पाएगा बर्ड। आप सोचिए 750 हेक्टर के अंदर कितने सारे बर्ड्स इंजर्ड हुए होंगे जो हमको पता भी नहीं है, कितनों की डेथ होंगी जो हमें पता भी नहीं है। सिटी में कहीं पे कोई बर्ड लटका हुआ है तो हमें पता चलता है, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से और फायर ब्रिगेड की मदद से उसको हम लोग निकालते हैं। बट यस, द नंबर इज इंक्रीजिंग, और उसमें रेयर बर्ड्स भी है। एक वुली नेक स्टॉक है, ब्लैक काइट है, देन आपका बहुत सारे आउल्स है जो नॉक्टर्नल है, जो रात में उड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंजुरीज हो रही है। और देखिए फेस्टिवल है, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। हम लोग कितना भी कह दे तुरंत ये चीजें बंद नहीं हो सकती है, बट हमें इस चीज के लिए लोगों को अल्टरनेटिव देना होगा। स्ट्रिक्ट रूल्स वहां पे होने चाहिए। हमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेजेस में हम लोगों को काम करना होगा, तभी जाके हम इस पे हम कुछ रोक लगा पाएंगे, हम इन बर्ड्स को सेव कर पाएंगे। और हम लोग जो है, किसी आदमी की जान जाती है, उसके घर वाले बात करते हैं, मीडिया बात करती है। आप सोचिए इतने सारे बर्ड्स मर रहे हैं, इनके लिए कौन बात कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि हमें रिपोर्ट भी नहीं हो रहे, बहुत सारे बर्ड्स मर रहे हैं। तो एनिमल्स के लिए बात करने के लिए कोई नहीं है, एनिमल्स खुद बता नहीं सकते, और जो लोग बात करते हैं वो बहुत थोड़े बहुत है। और जिसके घर में मौत होती है, आप सोचिए उसी को इसका दर्द पता होता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, और जो बहुत ही गंभीर है, किसी बच्चे का गला कटना, सोचिए अगर ये चीज हमारे घर में हो तो हम क्या फील करेंगे। लेकिन बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, हम लोगों ने उस दिन गोरेवाड़ा जू के अंदर से मांझा निकाला है, लेपर्ड एनक्लोजर के पास से। अगर उस लेपर्ड को कुछ इंजुरी हो जाती तो कल मीडिया में क्या आता कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसका ख्याल नहीं रखते आ रहा है। बट वो क्या कर सकते हैं कि अगर कोई पतंग आ गई, मांझा आ गया और कोई एनिमल इंजर्ड हो गया, कौन जिम्मेदार है इसमें? हर बार हम लोग जो है प्रशासन को ब्लेम करते हैं, लेकिन व्हाट इज आवर सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या हम हमारे लेवल पे क्या कर सकते हैं? हमने कुछ किया है? सिर्फ ब्लेम करते हैं। डेफिनेटली इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
बैन करने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट लोगों को भी सामने आना होगा। और जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, लोग समझेंगे नहीं, लोग इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ये चीज रुक नहीं सकती है। अगर हम लोग स्टेजेस में काम करेंगे, हमें कुछ नो फ्लाई जोन्स बनाने पड़ेंगे, जैसे अंबाझरी, गोरेवाड़ा, सेमिनरीज, अदर फॉरेस्ट एरियाज है, वहां पर कुछ नो फ्लाई जोन्स बनाने होंगे। हमें स्ट्रिक्ट रूल्स, अवेयरनेस एंड देन मांझा रिमूवल के ड्राइव्स जो है वो बड़े पैमाने पे लेने होंगे, जिसमें पुलिस प्रशासन से लेके सारे लोग इन्वॉल्व हो, फायर ब्रिगेड से लेकर सारे लोग इन्वॉल्व हो, स्टूडेंट्स विल बी देयर, वॉलंटियर्स विल बी देयर, और हमें ये करना होगा। और जैसे सभी लोगों ने कहा, थ्रू आउट ईयर हमें ये करना होगा, अगर हमें ह्यूमन इंजुरी और बर्ड्स इंजुरी रोकनी है तो। दोनों को देखना है। Yes. डॉक्टर भावस्कर, मैं आपसे दो चीजें और समझना चाह रहा हूँ। एक तो क्योंकि आप जहां अभी काम कर रहे हो वो सिटी के बीचों बीच में है। अब ये गोरेवाड़ा में अगर इतना सारा मंजा अगर मिल रहा है, तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप भी इस टाइप का विटनेस कर रहे हैं, बिकॉज यू आर प्रीटी मच इन द सेंटर ऑफ द सिटी। दूसरा ये कि डॉक्टर विल्किंसन ने ह्यूमंस को जो हार्म होता है, मेडिकल हार्म बिकॉज ऑफ मंजा, उसके बारे में बताया। तो एनिमल्स को जो हार्म होता है, सर्वाइवल के कितने चांसेस है? जैसे अजिंक्य जी ने कहा कि वो भले ठीक हो जाए मगर बर्ड उड़ ना पाए, तो वो अगर बर्ड उड़ ही नहीं पाएगी तो उसका प्रीटी मच एक लाइफ यही हो गया, एक तरफ से खत्म ही हो जाता है। तो एनिमल्स के लिए इंजरीज कितनी सीरियस है? आप म्यूट पर है सर। हाँ, नहीं, अभी भी म्यूट पर है सर आप। हाँ, अब ओके जी। पहले मैं अभी जिस तरीके से सब एक्सपर्ट्स की राय सुन रहा हूँ, उस हिसाब से मैं थोड़ा अपना पक्ष बताता हूँ। फिर जो दो सवाल आपने पूछे हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी ये जो है, जितने भी लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये सब ह्यूमन ही है। मैंने शुरुआत में ही बोला कि ये पूरी जिम्मेदारी जो है ये इंसान की ही है। इसके लिए जिम्मेदार भी इंसान है, और इसके लिए जो भी पनिशमेंट है या जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो इंसान की होनी चाहिए। जब जल्लाद कोई जानवर को काटता है तो वो बोलता है कि काटने वाले को माफ कर और खाने वाले को पाप कर। उसी हिसाब से अपन यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि बनाने वाले को अंदर करो, बाकी खरीदने वालों को अंदर करो, बाकी जो बीच के है वो हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी राय रख रहा है। तो उस हिसाब से जहाँ तक प्रोडक्शन का सवाल है, हर कोई हर चीज बना रहा है। हर कोई अल्कोहल बना रहा है, वो उसका भी मैन्युफैक्चरिंग है, सिगरेट भी बना रहा है, लेकिन जो नॉन स्मोकर है, जो नॉन ड्रिंकर है, वो सब वो चीजें खरीदते नहीं। तो इसमें क्या है कि सिंपल बोलो तो मराठीत एक म्हण आहे की आपण सांगे लोकाला शेंबूड आपल्या नाकाला। तो बस मैं ठीक हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो उस हिसाब से ना करते हुए, जैसे अजिंक्य जी ने कहा कि सिर्फ अपन गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते, हमें हर एक के लिए, हर एक जितने भी यहाँ अभी है माननीय सदस्य जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सबकी ये जिम्मेदारी है। हर एक का अपना अपना अलग अलग लेवल है। जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया की ओर से हर एक छोटे छोटे बच्चे को पता है कि नायलॉन मांझे का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। मैं मेरी बात बताऊं आपको कि मेरे घर में, मेरे घर के सामने रहने वाला 9 महीने का बच्चा, 9वीं में पढ़ने वाला एक बच्चा जब मुझे नायलॉन का मांझा लेके पतंग उड़ाते हुए दिखा था, तब मैंने उसको जब उसको रोका तो नहीं नहीं बोले नायलॉन नहीं है। फिर मैंने जब कंफर्म किया तो फिर बोलता है नहीं नहीं बोले वो नीचे गिरा हुआ मिला बोले। और फिर उसको ये पक्का पता था कि अगर मैं उसके ऊपर कोई, वो तो ठीक है, पालीवाल जी है, देवर ही है, अपने ही हैं, संस्कार है, पतंग उड़ाना ही चाहिए और अपनी कटनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान की कटनी चाहिए। ये तो अपने को संस्कार जो दिए गए उसी हिसाब से ये सब कोशिश हो रही है। लेकिन अभी यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब अगर खुद जिम्मेदारी ले, मैंने उसके पास से वो मांझा लेके जला भी दिया, तो हर कोई अपने अपने लेवल पे, बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे जिस भी तरीके से काम करता है वो कर ही रहा है। और उसको किस तरीके से, अब जो काम कर रहा है और रिजल्ट दे रहा है उसको कोई वजह देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो फेल हो रहा है उसके पास ढेर सारी वजह रहती है कि वो फेल क्यों हुआ। तो अपने को ये भी सबको समझना पड़ेगा कि हमें काम किस तरीके से करवाना है। अब मैं 20 साल से महाराज बाग यहाँ पे संभाल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का मुझे काफी सारा उसमें सपोर्ट मिला है। अब ये तो ठीक है, प्रशासन को ब्लेम गेम अपन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये हालत है कि मेरी खुद की अथॉरिटी की तरफ से जब मुझे कोई सपोर्ट में कमी होती है तब भी मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे जो भी है मीडिया, इनका काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो उस हिसाब से रीजन ऑफ फेल्यूर ना बताते हुए सबको साथ में आना चाहिए
और सब अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये काम, और मैं भी 20 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में ये टीटीसी वगैरह नहीं थे, रेस्क्यू सेंटर नहीं था, जो भी जंगल था उसमें पॉपुलेशन भी एक इम्पोर्टेंट है, वो सब नहीं थे, इसलिए ढेर सारे एनिमल्स या इंज्योर्ड जो भी मांझे से होते थे वो सब महाराजबाग नहीं आते। लेकिन पिछले 1-2 महीने से मैं ये नोटिस, मतलब स्टार्टिंग में जितने 10-15 साल पहले जो ज्यादा पैमाने पे जब होता थी ये परेशानी, इंज्योर्ड बर्ड जब संक्रांत के वक्त आते थे, तो अभी वो किस्सा कम हो गया है जहां तक महाराजबाग में। ठीक है, टीटीसी का अभी वहां पे हो सकता है कि कुछ शिफ्ट हो गए हो ये भी, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है, इसलिए अपने को पॉजिटिव रहना चाहिए। महाराजबाग का जहां तक सवाल है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी है, जो भी ग्रीनरी है नागपुर की, उसमें इन द हार्ट ऑफ द सिटी में रहने की वजह से यहाँ पे कम से कम 125 प्रकार के बर्ड्स है, उसके ऊपर रिसर्च हो चुका है। और इसलिए जहां तक अभी जहां अपन विक्टिम होने की बात करते हैं कि जानवरों के लिए क्या कितना विक्टिम के चांसेस है और बर्ड्स के लिए कितना है, तो ये सब उसी चीज के लिए लागू है कि जैसे एनिमल्स जो होते हैं ना, वो अपना मूवमेंट जो है, उनका हैबिटेट जो है, वो उनका अपना कन्फाइन होता है। अब एक्सीडेंट कब होगा? जब स्पीड ज्यादा रहेगी। फिर स्पीड किसकी ज्यादा रहेगी? या तो फिर इंसान की रहेगी क्योंकि वो बाइक पे जाएगा, या तो फिर बर्ड्स की रहेगी क्योंकि वो फ्लाई करते रहेगा। तो उस पोजीशन में विक्टिम्स, जहां तक जानवरों का सवाल है, जानवरों को ज्यादा परेशानी नहीं होती, वो काफी अलर्ट और काफी सारे वो कॉशियस रहते हुए ही मूव करते हैं, स्पेशली वाइल्ड लाइफ। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं वो जब फ्लाई लेते हैं, या तो फिर वो जब लैंडिंग कर रहे हैं, या तो फिर पेड़ पे बैठ रहे हैं, वो ज्यादा विक्टिम होते हैं। और अभी मेरे ख्याल से 8 दिन पहले 11 साल का बच्चा भिवंडी में पिताजी के साथ जा रहा था, तो वो खुद शिकार हो गया और वो ही इज नो मोर। मैं खुद अभी ये जब संक्रांत चल रही थी, मैं कूर्ग में था, तो उस वक्त एक वो ओपन वाली कार में मेरे बच्चे जब ऊपर रह रहे थे, तो मैं जब जंगल था तो उनको अलाउ कर रहा था खिड़की से बाहर देखने के, और जब जंगल खत्म हो रहा था, सिटी आ रही थी, तो आई वॉज वरीड फॉर दैट ऑल्सो। तो सबकी जिम्मेदारी है, सब लोग एक साथ काम करें, अपना अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, तो अपन आगे बढ़े। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे हमने शुरुआत में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा था, सो आई विल एंड दिस विद अनदर कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। जो कॉमन क्वेश्चन हम ये पूछना चाह रहे हैं आप सभी से कि आपके हिसाब से एक, अगर कोई बोले कि एक सोल्यूशन, ऐसे आई नो कि देयर इज नेवर वन सोल्यूशन, देयर आर ऑलवेज मल्टीपल सोल्यूशन। तो अगर ऐसा बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये करना चाहिए, तब जाके नायलॉन मंजे का मेनेस जो है वो या तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा या ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ जाएगा। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड डू और समवन एल्स शुड डू? तो ये हम आप सबसे जानना चाहते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस, एक डॉक्टर विल्किंसन से आई वांट टू आस्क यू सर एन एडवाइस फॉर पीपल एंड स्पेसिफिकली पेरेंट्स, क्योंकि क्या एक अडल्ट कई बार थोड़ा शायद अलर्ट हो सकता है बाहर जाते समय मंजे से, मगर बच्चे जब खेलने जाते हैं उनके ऊपर कौन रोक टोक करेगा? दौड़ते हैं, भागते हैं, उनको पता नहीं रहता। How should we protect ourselves, because we can't keep children inside the house during Sankranti for the entire 1 month? तो क्या करना चाहिए? और दूसरा सर, अगर आप ये भी कि अगर गलत जैसे कि हो गया, कभी लग गया, और कभी कभी होता है कि हॉस्पिटल थोड़ा दूर है, टाइम लगे, इमीडिएटली क्या किया जा सकता है सर? जस्ट बाय टिल द टाइम अ पेरेंट कैन टेक द चाइल्ड टू हॉस्पिटल, व्हाट कैन बी डन? To begin with, for example, अगर सिर्फ बच्चा सिर्फ पतंग उड़ा रहा है, so the chances of him injuring, having an injury, serious injury to neck is unlikely. However, there are other injuries. I have seen a child छत से उड़ा रहा है, he's fallen down from, छत से गिरा है, he's got जो नीचे के जो क्या बोलते हैं, these spokes of the जो gate, he's got impaled in that. तो बहुत सारे वैसे इंजरीज, या पतंग लूटने में कोई निकले तो फ्लाईओवर से गिर गए. So those are the injuries. Now, if purely the child is just flying a kite on the roof, so unlikely, except for maybe he may get his fingers cut with the manja, so he should be advised to wear gloves or some protective tubings on his fingers. But now, second thing, all if it comes to if you find a victim on the road who has got his neck cut as a result of manja, the first things first is that the wound, a cloth should be taken, a clean cloth, a handkerchief, whatever, and
some pressure should be applied. Most of the time, the bleeding which is occurring with a little bit of pressure, you can't apply too much of pressure, would Yeah. stop to some extent. Okay, and then of course that rush to the hospital. Now, what I found in the last year, what I found is what the victim complained is when he was injured, there was nobody coming forward to help him. All of them were busy taking photographs of the. That has also become that you take a photograph and post it on social media, and it becomes viral on social media. So that is another thing, that is another problem. And finally, I mean, your common question, let me answer right now. Sure. That the only way we can stop it completely is by banning kite flying altogether. But that's not possible. So we have to find a middle path. राइट सर। संघवी जी, मैं आपसे शुरू करता हूँ कॉमन क्वेश्चन का कि प्रायोरिटी पे सर क्या रहना चाहिए? व्हाट शुड वी डू टू एंड दिस मेनेस? यदि हमें शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली बैन करना होगा इसे मैन्युफैक्चरिंग पे, और लॉन्ग टर्म में यदि हमको इसका रिजल्ट चाहिए तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरे साथियों ने भी बोला कि मुझे मेरी जवाबदारी तो समझना ही समझना है, पड़ोसी को बाद में समझाना है, पहले मुझे समझना है कि मुझे इसका यूज नहीं करना है। तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा कि हमें अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। बट इमीडिएटली है कि गवर्नमेंट ने इंश्योर करना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली इमीडिएटली शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यही है कि पहले इसको मैन्युफैक्चरिंग के बैन करना होगा। और लॉन्ग टर्म का जो मैंने कहा इसलिए कहा है क्योंकि ये बैन इंडिया में तो हो जाएगा, यदि गवर्नमेंट चाहेगी तो डेफिनेटली बैन होगा। लेकिन जैसे कि अभी किसी व्यक्ति ने भी कहा था कि ये एक्चुअली चाइना के नाम से प्रसिद्ध है, ये मांझा जो है अभी चाइना से नहीं आ रहा है, अभी इंडिया में बन रहा है। लेकिन यदि इंडिया में बैन होता है और चाइना से यदि वापस ये इम्पोर्ट होता है तो उस समय हमको ये अवेयरनेस काम में आएगा कि नहीं, हमारे इंडिया में तो हमने इस चीज पे बैन लगा दिया है लेकिन ये चीज हमारी यूज की नहीं है, इसलिए हमने अवेयरनेस लाके इसको पूरी तरह से इसको बंद करना होगा यूज। दैट्स अ गुड पॉइंट। डॉक्टर बावस्कर और फिर रतुड़ी जी। मेरे ख्याल से विजिलेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स. So all of us, we should have open our eyes and our ears. We should keep our mouth closed. I think it will be better. So I will like to just request Ashok Sanghvi ji. He is holding a good position in the society regarding this merchandise and all this business purpose. So I will request him to wherever he is producing. If you take initiative, you can ask all your colleagues to stop buying. If you don't buy, then no one will purchase, no one will get also. So thank you. बिल्कुल, रतुड़ी जी और उसके बाद अजिंक्य जी। हम लोग बार बार एक आवाज उठा रहे हैं कि इसको बंद होनी चाहिए, इसकी निर्मित। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2014 मार्च महीने के पहले, क्योंकि ये साल भर चलता है ये, और इसका खेल समझिए आप लोग, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये करोड़ों नहीं खरबों का व्यवसाय है। आप मानिए इस बात को। इसके अंदर बड़े बड़े राजनीतिक के लोग, उनके रिश्तेदार इन्वॉल्व है इसमें। मैं बरेली और मेरठ में गया हूं, 1 महीना 17 दिन रहा हूं। इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का धन्यवाद, उन्होंने ये स्टोरी को कवर किया था। वहां में जिस एरिया में गया, वो वहां घर घर में नायलॉन मंजा तैयार होता था, कच्ची डोर से वो पक्की डोर बनती थी। वो उसमें कांच का चूरा, प्लास्टिक और बहुत सारी चीजें मिक्स होती, उसमें मसाला। वो चीन ताइवान से न होते हुए बरेली और मेरठ में बनता था। उन लोगों को मैंने समझाया तो उन्होंने कहा ऐसे बहुत लोग आते हैं हमें समझाने के लिए, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। वो लोग समझने को तैयार नहीं थे। दुर्भाग्यवश उसी समय वहां किसी व्यापारी की पोती कटी और एक हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई, जिसमें कोई PSI उत्तर प्रदेश पुलिस का, इनकी दुर्घटना हुई। पेपर में वो चीज आई, मैं स्वयं वहां था, लोगों को ध्यान में आया। फिर उन लोगों ने मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद में 3 पत्र उन्होंने, एक मुझे दिया था, एक उन्होंने उस समय राज्यपाल जो थे उत्तर प्रदेश के नाइक सर थे, और तीसरा प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे लेकिन दावेदार थे। इन्हें दिया हुआ था उस समय पे 3 लेटर कि हम लोग इस माल को न तो बाहर से लाएंगे, न बनाएंगे, न बेचेंगे। जो इस नियम को तोड़ेगा उस व्यापारी के ऊपर 20 लाख का जुर्माना। किसने? आपस में पूरे दुकानदार संघ ने। वही नागपुर में अपने दुकानदारों को समझाई, लेकिन दुकानदारों का यही कहना है कि हमें तो माल लोग मांगते हैं,
हमने कच्ची थ्रेड खरीदी, माल तक का पैसा नहीं निकला जो हमने खरीदा है। तो ये मानसिकता हमारी अपनी होनी, हमारे घर से शुरू होना, हमारे अड़ोस पड़ोस परिसर से शुरू होना कि आप इस माल को मत खरीदिए। और इस बात की थोड़ी खुशी है हमें कि जो हम जन जागृति करते थे, मेरी पत्नी पे लोग हंसते थे नागपुर में कि ये पति पत्नी पागल है, पर्चे बांट रहे हैं घर घर में जाके। जब हम इसकी शुरुआत करते थे, क्योंकि मेरा टारगेट था कि जन जागरण मुहिम चलाई जाए, लोगों को समझाया जाए कि जान किसी की भी सड़क पे गिरी नहीं है, जान सस्ती नहीं है, कीमती है जान। आज मेरे घर में मौत होंगी तो कल तेरे घर में मौत होंगी, परसों उसके घर में मौत होंगी। अब मौत का इंतजार मत करो, सावधान हो जाओ। हंसते थे लोग हम पे, पर्चे हम बांटते थे, मजा उड़ाते थे हमारी, लेकिन आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी हमारी बात को माना। दो हमारी याचिकाओं पे उन्होंने संज्ञान लिया, मुआवजा भी दिलाया, सरकार को कठोर कार्रवाई का भी बोला। अभी हमारी मांग ऐसी है कि इसको हमेशा के लिए हमें प्रतिबंध करना है, तो कठोर कार्रवाई की जाए इस्तेमाल करने वालों पे, जो मैं पूर्व में बोल चुका हूँ। आईपीसी की 307 लगाइए जहां बहुत ज्यादा इंजरी हुई है, सदोष मनुष्यवध लगाइए, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की आप 1985 कलम 5 लगा रहे हैं, वो कम गिर रही है। कार्रवाई वन विभाग ने भी करनी है, महानगर पालिका ने भी करनी है, कलेक्टर की जो टीम होती है जी उन्होंने भी करनी है, प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी करनी है। स्ट्रॉन्ग एक्शन हमें जरूरी है कि बिल्कुल हर स्टेप पे लेना बहुत जरूरी है, विदाउट डाउट। जी अजिंक्य जी और फिर अभिजीत जी। जी एक बात बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि हम एक इसी सब्जेक्ट की शूट के लिए भी जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, मैंने जो बोला है कि बारिश आएंगे हम छतरी लेने जाएंगे, हमें बारिश का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि धूप भी तेज होती तब भी हमें छतरी की जरूरत होती है। ये साल भर चलता है और लगभग 4 मैदानों का हमने नायलॉन मंजा जमा किया हुआ है। दुर्भाग्यवश आप देखिए 3.5 किलो के ऊपर में 3 मैदानों का जमा हुआ। तो आप सोचिए नागपुर में कितने असंख्य मैदान है। माननीय न्यायालय ने, किसी पैनलिस्ट ने ये बात नहीं उठाई कि माननीय अदालत ने महानगर पालिका, पुलिस विभाग को, वन विभाग को ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर कॉपी में है, जजमेंट कॉपी में, कि आपने उसको भी निकालना है। लेकिन वो किसी ने, पूर्व मान्यवर ने बोला था कि झाड़ू लेके निकाल रहे हैं, कहीं निकाला नहीं जा रहा है। हमने बार बार विनती की थी महानगर पालिका कमिश्नर साहब को कि आप मैदानों में झाड़ू लगवाइए, झाड़ू जो होता है वहां आप जमा करवाइए उस माल को, क्योंकि वहां पे चिड़ियाएं मर रही हैं, मुख्य प्राणी जो श्वान जाता है, गाय जाती है। अभी पूर्व में 4 दिन पहले छोटा बच्चा, 3 महीने का बच्चा, दूध पीता बच्चा, उसके मुंह से हमने मंजा निकाला, 3.5 घंटे का कठिन परिश्रम करना पड़ा हमें। उनके हाथों में जाता, वो आते कट जाती, वो लोग तड़प के मर जाते हैं। ये भी मौतें हुई जो मैंने 62,000 मौतें बताई, 42,000 मौतें बताई, वो भी ये पार्ट है मौत का। चिड़ियाओं के पंख गिर जाते हैं। एकदम वो आप ठीक कह रहे हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया और ये टाइप की जो चीजें हैं जो जानवर खा जाते हैं। बिल्कुल। तो वही अजिंक्य जी और अभिजीत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द प्रायोरिटी, क्या रहना चाहिए। अजिंक्य जी से शुरुआत करते हैं। इन सिंगल वर्ड, अवेयरनेस। एक सेंटेंस में इसका जवाब अवेयरनेस है। बट डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि हमें बहुत सारी स्टेप्स पे काम करना होगा, डिफरेंट लेवल पे काम करना होगा। और हम लोग अभी आज नायलॉन मांझा बैन करने की बात कर रहे हैं, बट अगर आज नायलॉन मांझा बैन हुआ तो कोई और स्ट्रॉन्ग थ्रेड होगा जो कोई और मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो इसमें यूज किया जाएगा, क्योंकि लोगों को अपनी पतंग नहीं कटने देनी है, तो कोई और मांझा वो लोग यूज करेंगे। तो ये है कि हमें इसके लिए अवेयरनेस करनी होगी। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग थ्रेड लीजिए, वो बर्ड्स के लिए हार्मफुल रहेगा। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग थ्रेड है, वो नायलॉन हो, प्लास्टिक हो, या कांच की चूड़ी लगाया हुआ शीरस से जोता हुआ मांझा हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग थ्रेड वो बर्ड्स के लिए हार्मफुल होगा। नागपुर में 340 बर्ड रिपोर्टेड है, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी है जो कहीं बाहर की देशों से आते हैं। और हमें अगर वो बर्ड्स इंजर्ड होते रहे, इसी तरीके से हम लोग अगर बर्ड्स का हैबिटेट वहां पे नहीं रख पाए तो माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं आएंगे, एक हैबिटेट खतरे में आएगा और एक फूड चेन खतरे में आएगी। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कोई भी ऐसी इंजर्ड बर्ड आपको दिखती है तो आप 1926 जो टोल फ्री नंबर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उस पर आप कॉल कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग टोटली काइट्स को यानी पतंग उड़ाना बैन तो नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम लोग नो फ्लाई जोन्स बना सके, हम लोग अगर फॉरेस्ट एरियाज में नो फ्लाई जोन्स बना सके जहां पे कंप्लीट बैन हो काइट्स का, तो अगर ये कर पाए तो हम बर्ड्स जो है उसको प्रोटेक्ट करने में, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में काफी हद तक हम लोग कंट्रोल ला पाएंगे। बाकी ह्यूमंस के लिए तो बहुत लोगों ने बात की है और वो
उसके लिए तो प्रयास होंगे, क्योंकि हम लोग सारे लोग ह्यूमंस के बारे में सोचते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ बर्ड्स के बारे में बताऊंगा कि अगर हम ये कर पाए तो वी कैन सेव बर्ड्स। Thank you. And Abhijit ji, you'll have the last word on this. Yeah. यस सर, पैनल में जितने भी सभी महानुभाव ने अपने अपने अनुभव के आधार पर बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए और अपना एक्सपीरियंस साझा किया। स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे काम करने की जरूरत है। सर्वप्रथम हम सभी नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस प्रकार जो नायलॉन मंजों की अवैध बिक्री हो रही है और उससे जो हानि हो रही है, इंसान की मौतें हों या पशु पक्षियों की हो, वो हम सभी के बोल सकते हैं कि जिम्मेदारी है कि हम कैसे उसको प्रकोप को रोकें। सबसे पहले जो जिम्मेदारी बनती है वो एडमिनिस्ट्रेशन की इसलिए बनती है क्योंकि वो चाहे तो परिपूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा सकते हैं, और प्रतिबंध लगाने के साथ साथ ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते उन्होंने कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि कानून का डर उन्हें समझ में आए। और जब हम प्रतिबंध की बात करते हैं तो आपको ये मालूमात होगा कि जब कोई चीज प्रतिबंध किया जाता है तो कुछ असामाजिक तत्व तो उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं, उसे भी कर्व करने की जरूरत है कि जब कुछ चीजें बैन हो जाती है कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से वो रुकता नहीं है। इसलिए पूरे एजेंसीज ने इसका ध्यान रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ऐसा कुछ अल्टरनेटिव तैयार किया जाए जो लोगों को पसंद आए, क्योंकि ये त्योहार लोगों के हर्षोल्लास के लिए, हम अपने खुशी के लिए किसी के घर में मातम का एक मातम के लिए हम जिम्मेदार ना हो, ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। चाहे पशु पक्षियों की जान जा रही हो, बच्चों की जान जा रही हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बहुत बड़े पैमाने पर जन जागरूकता करने की जरूरत है। और जिस प्रकार से टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से लगातार जो भी विषय है समाज के उसे उठाया जाता है, उसी तौर तरीके से लोगों ने भी, संस्थाओं ने भी संपूर्ण शहर में एक जन जागरूकता की मुहिम छेड़ने की जरूरत है। लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ नायलॉन मांझे से पतंग नहीं उड़ रहा है, आप अपनी खुशी को इजहार करने का अलग अलग तरीका अपना सकते हैं। और नागपुर सिटीजन्स फोरम के माध्यम से हमने इस बार डिसाइड किया कि इस बार तो वो चीजें इम्प्लीमेंट हम नहीं कर सके क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे, लेकिन सूरत में एक कॉन्सेप्ट हमको बहुत यूनिक लगा कि एक नेक बेल्ट तैयार किया गया है सेफर साइड पे, कि थोड़ा बहुत जो लोग हैं नागपुर शहर में जनरली विजिट करते हैं, हेलमेट के साथ साथ उन्हें हम नेक्स्ट ईयर नेक बेल्ट प्रोवाइड करेंगे नागपुर सिटीजन फोरम के माध्यम से, जिस बड़े पैमाने पर हम कोशिश करेंगे कि वो हम दे सके लोगों को, ताकि कुछ ना कुछ तो उनको रिलीफ मिले। ये हम सभी की जिम्मेदारी है, और मैं आशा अपेक्षा करता हूँ कि लोग भी थोड़े जागरूक होंगे, एटलीस्ट जो पढ़े लिखे बढ़ गए, जो खुद को एक सुसज्ञ नागरिक बोलते हैं, कि सिर्फ नायलॉन मंजे से ही आप मकर संक्रांत नहीं मना सकते। और प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाना चाहिए हाईकोर्ट के गाइडलाइंस में, ताकि जो इस प्रकार के अवैध एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनके ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई कीजिए कि दूसरे के लिए एग्जाम्पल सेट हो। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू। आज बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ, बिकॉज एक बात तो क्लियर है कि दो इट वाज अ डिबेट, बट वी डिस्कस डिफरेंट साइड्स ऑफ इट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एवरीबडी वांट्स कि ये जो नायलॉन मंजा का जो मेनेस है, दिस शुड एंड। इसमें किसी के भी दो मत नहीं है। और आई थिंक प्रशासन को, जैसे कई लोग ने कहा कि कई चीजें करना है, मगर सोल्यूशन जो सबका मुझे कॉमन थीम लगा, दैट वाज अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स। अगर सिटीजन्स को ये समझ में आ जाए कि ये चीज मुझे यूज नहीं करनी है, एक बार डिमांड किल हो गई तो सप्लाई तो सवाल ही नहीं उठता उसके बाद में। एक बार डिमांड अगर किल हो गई तो सप्लाई बिल्कुल नहीं उठता है। और कोई भी बिजनेसमैन हो, वो एक या दो आदमी के लिए इतना बड़ा कोई सेटअप नहीं लगाएगा। तो अगर एक छोटी सी माइनॉरिटी बच भी जाती है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल ही नहीं रहेगा वो मैन्युफैक्चरिंग, अगर इतने कम लोग उसमें बच जाए, धीरे धीरे इट विल डाई। सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि अथॉरिटीज अगर इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले, एक्शन की बात सिर्फ ये नहीं कि फाइन, बट जैसे कि रतुड़ी जी ने भी कहा कि बिल्कुल बड़े यानी पीनल कोड के अंडर ही कुछ एक्शन लेना शुरू कर दो, ताकि लोगों को समझ जाए कि ये ना करे और ये चीज बिल्कुल हमारे लिए डेंजरस है। और ये आपने ऐसे नेक वाला कहा, ऐसे आई एम श्योर कि कई चीजें रहेगी, बट एनिमल्स के लिए और ये बर्ड्स के लिए जो है, दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में दिस इज समथिंग जस्ट फूड फॉर थॉट, जो चीजें अजिंक्य जी ने और डॉक्टर विल्किंसन ने दोनों थोड़ा सा बात पे टच किया है कि थ्रेड जो है, अल्टीमेटली एनी थ्रेड इज डेंजरस फॉर बर्ड, सो कोई थ्रेड से जल्दी कट हो जाएगा, किसी थ्रेड से शायद थोड़ा देर से कट हो जाएगा, बट एनी थ्रेड इज डेंजरस फॉर एनिमल्स। तो ये शायद थोड़ा हमारे लिए सोचने की चीज है कि व्हाट कुड बी द सोल्यूशन। बिकॉज अभिजीत जी ने जैसे कहा कि ये त्योहार जो है हमारे क्या बोलते हैं, हर्ष के लिए। हम लोग जब सब छोटे थे
तो सब लोग पतंग सब ने उड़ाया, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने पतंग नहीं उड़ाया है। तो ये, और हमको पता है कि उससे कितनी खुशी मिलती, मगर अब उसको किस तरह से हम लोग दूसरों के लिए सेव करें। जैसे उन्होंने अच्छा वर्ड, मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने कहा कि हमारी खुशी किसी का दुख नहीं बनना चाहिए, बस तो पर्पस डिफीट होगा। सो इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ अस। इमीडिएट तो शायद इसका कोई सोल्यूशन नहीं, बट सिविक अवेयरनेस अगर सब सिटीजन में आ जाए, एंड आई होप कि आज जितने हमारे पैनलिस्ट थे इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज, वी हैड अ वेरी गुड पैनल, बिकॉज वी हैड अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिटीजन एक्टिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पूरे डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल गया, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव। सो आई थैंक ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू so much for sharing your views, and I hope you have a good day today. Goodbye. Thank you so much, sir, for giving us opportunity. Thank you so much. Thank you.